This is a numerical. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height and the time taken by the ball to return the same level and the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. This is a question of NCERT and हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है. तो note the statement. This is the projectile thrown. कल हमने इसका आर्टिकल किया था. This is x-axis horizontal angular projection. This is a y-axis. This is a initial speed u making an angle theta is equal to 30 degree. This is given in the question. The initial speed is given. Initial speed is given. Am I audible? Yes, sir. Some students are still joining, Yes, sir. creating problem again and again. So this is my question. Cricket ball is thrown with initial speed 28 meter per second. This is given. We have to calculate number one, maximum height, and the formula for the maximum height is h is equal to, you know that, u square sin square theta divided by 2g is equal to, u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू व्हाट इज दिया, 28 मीटर पर सेकेंड. 28 square into sin theta, sin 30 degree square divided by 2 into the value of gravity is 9.8 meter per second square. It is equal to 28 का square means 28 into 28 into sin 30 degrees 1 by 2 and 1 by 2 का square is 1 by 4. 1 by 4 divided में 2 into 9.8 और ये पॉइंट का 10 चला गया न्यूमरेटर में, पॉइंट का 10. सर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगी कि सर नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों लिए सर? सर नेगेटिव नहीं होगी तो नीचे कौन लग रही है? बोलो. सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव नहीं होगी. हमने आर्टिकल कर लिया है. अब आर्टिकल करने के बाद जो रिजल्ट है हम उनको यूज कर रहे हैं. नेगेटिव पॉजिटिव आर्टिकल में मैंने आपको क्लियर किया है. वॉच द वीडियो अगेन. राइट? ओके बेटा. यस सर. व्हाट इज आंसर? 10 10. गुड. 10 यूनिट. meter. Yes. Meter. Good. Part number 2, calculate time of flight. The formula, if you don't know the formula, then it is not possible to solve the numerical. T is equal to 2u sin theta by g. 2u is given, that is 28.
into sine 30 degree divided by g is equal to 9.8 meter per second, is equal to 2 into 28 into sine 30 degree is equal to 1/2 डिवाइड 98, डेसिमल हटा दिया, 10 आ गया, 2 से 2 कट गया। टेल मी द आंसर। 280 divided by 98, it would be 2.7 seconds. 2.9 second. Exact answer. Number 3 is horizontal distance. What is the formula for the horizontal distance? Who will tell me? Range. Range का formula बताएं। U square sine Sir, 2 U theta by square sine 2 theta upon G. Good. Tell me the answer. You have 1 minute. Put all the values and tell me the 40. answer. Yes. So 40. 40 नहीं होगा, कुछ गलत किया होगा आपने। लेट मी सॉल्व। इट इज इक्वल टू u square. U square means 28 into 28 into sine 2 theta. Sine 2 theta means theta is 30 degree, that is 60 degree. Sine 60 degree and sine 60 degree is root 3/2. And gravity is 9.8. Its answer would be 69.3. 69.3. Okay. Should we move toward the next question? yes, yes, sir. सर अगर इसको 40√3 भी छोड़ दे तो भी सही होगा ना आंसर? No problem. Use the values and solve the numerical. कोई problem नहीं है, but answer should match. Now next question is, note the statement. A boy stands at 39.2 meter from a building. ये बिल्डिंग है, दिस इज ए बिल्डिंग, दिस इज ए बिल्डिंग, और बिल्डिंग का बेस है, इस बेस से पीछे एक बॉय, ए बॉय स्टैंड्स हियर, बॉय स्टैंड्स हियर, यहाँ पे, तो थ्रोज ए बॉल, ये बॉल थ्रो करता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, and this ball passes through the window which is a 9.6 meter above the ground. तो ये बॉल जो है ग्राउंड को इस तरह से टच करेगी। अगर ये डिस्टेंस 39.2 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 39.2 मीटर होगा, एंड दिस दोनों डिस्टेंस को ऐड करके रेंज आ जाएगा मेरे पास 39.2 प्लस 39.2 इज इक्वल टू, और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? इट शुड बी 78.4 मीटर। दिस इज रेंज। इसका मतलब क्वेश्चन में आपके पास रेंज दिया गया है, यू हैव रेंज 78.4 मीटर, एंड आपके पास ये विंडो का हाइट दिया हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम आपके पास दिया गया है 19.6 मीटर, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अगर आपके को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला जो है रेंज का फॉर्मूला है, हाइट दिया है तो हाइट का फॉर्मूला में जाते हैं जरा। हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला भी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g,
साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मुझे u कैलकुलेट करना है दोनों ही फॉर्मूला से, तो ग्रेविटी की वैल्यू तो मुझे पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ g, बट मुझे h भी दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, लेकिन थीटा नहीं है। इन दोनों केसेस में आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा एंड दिस इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी नहीं दी गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ थीटा, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है से कुछ थीटा का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, h बाई आर। देखते हैं क्या निकलता है, h बाई आर। h का वैल्यू क्या है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो हमारा सर एच है सर, वो एच मैक्सिमम है। हाँ h मैक्सिमम है। तो हम सर यहाँ यूज कर सकते हैं कि एच मैक्सिमम में सर हमारा जो थीटा वो 45 डिग्री होता है। हाँ, आर मैक्सिमम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन एक और क्वेश्चन भी हो जाएगा बीच में, हम रिलेशन भी बना लेंगे, एच और आर में कोई नया रिलेशन बन जाएगा, राइट। अगर हम थीटा पुट कर देंगे मैक्सिमम के लिए, लेकिन क्वेश्चन में इसने मैक्सिमम बोल भी नहीं रखा है ना, तो है तो ये मैक्सिमम ही है, राइट। ओके सर। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आर को डिवाइड करेंगे तो आर का रेसिप्रोकल हो जाएगा g डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। g से g कट गया, यू स्क्वायर से u कट गया, तो h बाई आर कितना आ गया, इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है साइन 2 थीटा, इसको ओपन कर दो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 1/4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहां से मेरे पास टेंजेंट थीटा बन जाएगा 4h बाई आर। 4h मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 19.6, और रेंज भी मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 78.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू, टेल मी द वैल्यू, सॉल्व करके कितना आएगा, 4 इंटू 1 45 degree. 784, आई थिंक ये 4 से कट गया, इट इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, अभी बच्चे ने बताया भी। 45 degree. गुड, वेरी नाइस, tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने टेंजेंट थीटा को कैलकुलेट कर लिया है। अब थीटा तुम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर, यू थीटा का वैल्यू मेरे पास है, नाउ एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे सर हमारा सर थीटा 45 डिग्री आ गया, तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं बाद में कि द हाइट गिवन इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। हाँ, हम बोल सकते हैं। अब 45 पे हमारे पास कंडीशन है, राइट। 45 पे हमारे पास क्या कंडीशन है, रेंज मैक्सिमम है, हम बोल सकते हैं रेंज मैक्सिमम के लिए कल हमने फॉर्मूला निकाला था यू स्क्वायर बाई जी। ओके, तो यू स्क्वायर तो यहीं से निकल जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू रेंज मैक्सिमम, जी इज इक्वल टू 9.8 इंटू रेंज मैक्सिमम इज 78.4 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, u इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें 9.8 इंटू 78.4 and u is finally equal to, its answer would be 27 something, 27.7 वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट होगा इसका आंसर। ओके, राइट, नेक्स्ट मूव करें।
अंडरस्टैंड बेटा, रिप्लाई करो। सर इस क्वेश्चन में सर हमें गिवन नहीं था कि मैक्सिमम है, और अगर किसी में गिवन हो कि सर इट इज द मैक्सिमम हाइट, तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं देखो सर, देखो r इज इक्वल टू यू देखो, ये नहीं भी गिवन है तो ये मैक्सिमम ही है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एक बॉल थ्रो किया जाता है और विंडो से पास कर रहा है, तो विंडो से पास कर रहा है तो उसका हाइट ही है, ये मैक्सिमम है। इसके आगे आप कैसे बढ़ा सकते हो उसको? दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। ओके, यू कैन, आप इनिशियली भी आप ये स्टार्टिंग में भी बोल सकते हो। अगर शॉर्टकट लगाना है फाइनल एग्जाम में तो आप यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट, ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है तो यही आना है, डायरेक्ट यहीं से कर दोगे आप, राइट? यस सर। नो नीड टू सॉल्व, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। रिप्लाई। Yes. Question, note the statement so that given gun will shoot 3 times as high when elevated at an angle of 60 degree and when fired at an angle of 30 degree, but will carry the same distance on the horizontal plane. So question है, this is our article, given gun so that शूट करते हैं, एक बुलेट फायर किया आपने और ये 60 डिग्री से, फिर दोबारा फायर की 30 डिग्री से, तो आपको प्रूव करना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इनकी सेम है और हाइट के बीच में रिलेशन जो इन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला है वो प्रूव करना है हाइट के बीच में। तो हाइट का फॉर्मूला ले लेते हैं पहले। नंबर 1 हाइट का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब आपने इसको 60 डिग्री से थ्रो किया, थीटा इज इक्वल टू जब 60 डिग्री है तो हाइट को हम h1 मान लेते हैं। ये हाइट, ये जो भी हाइट गई, दिस इज h1, height is h1, then u square sin 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। what is the value of sin 60 degree? √3/2 का स्क्वायर 2 इंटू जी। कितना आ गया बेटा इसका आंसर? 3u स्क्वायर डिवाइड बाई 8g। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। नेक्स्ट, दिस इज 60 डिग्री, ये गलत लिखा है, ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू नेक्स्ट वन इज 30 डिग्री। Then tell me the value of maximum height is h2. This is U h2. square by 8. h2 u square sin 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 30। कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g and its answer is u square by 8g।
ये 2 2s are 4 2s are 8 8g। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपके पास? h1 by h2 कर दो, h1 by h2 h1 3u स्क्वायर by 8g इंटू h2 डिवाइड किया तो 8g डिवाइड बाई यू स्क्वायर, 8g से 8g कट गया, यू स्क्वायर से u कट गया, इट इज इक्वल टू ओनली 3। सो हाइट h1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h2। ओके, कई बच्चों ने कर भी लिया हुआ है, दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। अब प्रूव करना है कि रेंज बराबर होगी, रेंज बराबर होगी, प्रूव दैट रेंज इज इक्वल। दूसरा पार्ट ये है, अनदर पार्ट इज रेंज इज इक्वल। रेंज का फॉर्मूला लिखें, एंगल पुट करें पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री एंड चेक दैट ये इक्वल आता है या नहीं। व्हेन एंगल इज 60 डिग्री रेंज इज R1 एंड रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पुट द वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट करें और आंसर बताएं कितना आएगा। साइन 120 डिग्री आएगा यहाँ पे। अब साइन ये थीटा से 60 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 120 डिग्री कितना होता है बोलो? एक दिन मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया था। -√3/2। कितना वैल्यू है साइन 120 डिग्री का? √3/2। इसका वैल्यू आएगा √3/2। √3/2 यू स्क्वायर जी ऑलरेडी है डाउन, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। Let us suppose that range is R2, u square sin 2 into theta is 30 degree divided by g, it is equal to u square sin 60 degree divided by g, it is equal to sin 60 degree again √3/2 u square by g, which implies range R1 is equal to range R2। इनका रेंज बराबर होगा, इसका मतलब ये होगा। Understand? Okay. Yes, sir. Let's move toward the next question. वन मार्क्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं पिछले वाले। Who will tell me the value of A cross A? What is A cross A? Some miscellaneous question. A cross A. Question number 1. What is the value of A cross A? You know that A cross B is equal to AB sin theta n cap। A क्रॉस A मतलब थीटा दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0 डिग्री। ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। A क्रॉस A इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड दोबारा A का मैग्नीट्यूड साइन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, साइन 0 0 हो गया, A स्क्वायर इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0। ओके, ओके बताइए जरा। Yes. Next question, what is the angle made by the vector
what is the angle made by the vector A is equal to 2i plus 2j with the x-axis. This is a question. Suppose that this is a vector A, this is x-axis, this is a vector A making an angle theta with the x-axis, and this is a y making an angle 90 minus theta with the y-axis. What is the angle made by the vector with the x-axis? Along x-axis, the unit vector is I cap. Along y-axis, the unit vector is j cap. You can use dot product. I know that vector A dot B is equal to A का magnitude, B का magnitude, cosine of the angle between them. A वेक्टर तो मेरे पास है, B नहीं है. Let us suppose that vector B is equal to I. This is vector B. So cosine theta कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला से? Cos theta is equal to A dot B divided by magnitude of A, magnitude of B. A dot B. Tell me the answer of A dot B. A dot B का आंसर बताएं. इनका ही डॉट होगा सिर्फ, प्लस 0j. टेल मी द डॉट ऑफ, कितना आएगा ए डॉट बी? जल्दी बोलो बेटा. 2 नहीं आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा. 2 इंटू 1 1, 2 नहीं होगा. एम आई राइट? रिप्लाई कीजिए. यस सर। डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड. ए का मैग्नीट्यूड क्या है? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आई है सिर्फ 1 का स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, रूट 8, ये 1 हो जाएगा इंटू 1. इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई रूट 8. 2 इंटू 2 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2 बाई 2 रूट 2. ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया. इट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. इफ cos theta is equal to 1 by root 2, if cos theta is equal to 1 by root 2, what is the value of theta? 45 degree. 45 degree. 45 degree answer. There are lots of questions. बहुत सारा वैरायटी है. इन क्वेश्चंस को करें.
Next question is, these are the 1 marks question. What is I dot j? Question is, what is I dot j? What is I dot j? 0. 0. How? I know that A dot B is equal to AB cosine theta. So I dot j is equal to I का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, कोसाइन इनके बीच में I और j के बीच में एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री is equal to 0, I का मैग्नीट्यूड 1 into 1 into 0. I dot j is equal to 0. Again, I have another question. Under what condition magnitude of A cross B is equal to A dot B? Is that 2 marks question? Under what condition? Then I know that A cross B is equal to A B sin theta, n cap magnitude is equal to, right side में A dot B का फॉर्मूला है A B cosine theta. Open the magnitude, A as it is, B as it is, sin theta and unit vector का magnitude is equal to AB cosine theta. AB से AB कट गया, n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, sin थीटा is equal to cosine theta, which implies sin theta by cosine theta is equal to 1. Sin theta by cos theta is equal to tangent theta is equal to 1. Then what is the value of theta? 45. 45 degree. At 45 degree, this condition holds good. Theta is equal to 45 degree. Theta is equal to 45 degree. Now, there is 1 minute, class will be off. I have another question for you. Calculate the value of I dot j cross k. This is the question. I dot j cross k. J का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड, साइन j और k के बीच में कितना एंगल है बेटा? 90 degree. 90. 90 डिग्री. और यूनिट वेक्टर क्या आएगा? j